Assalamu alaikum students. Today is your first class of your English B syllabus of January 2021. We are going to start comprehension paragraphs in your book. Now come up to comprehension passage number 9. Come up to comprehension passage number 9. That's in your book. Have you got the page? All of you have got the page, beta. We will read the passage and you have to find out the answers yourself. मैं आपको answers dictate नहीं करवाऊंगी. You have to find out the answers yourself. So you need to understand the full paragraph. You need to read the whole paragraph. Okay. जी बेटा, can anyone read? Can anyone read the paragraph? Raise your hands. Yes, Ramesh Patma. Ramesh, beta, unmute yourself and read the passage. Walaikum assalam, beta. Walaikum assalam. अस्सलाम वालेकुम टीचर। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा. Ramesh, read the paragraph. Rehan Amjad. Rehan Amjad, beta, unmute yourself and read the paragraph. अस्सलाम वालेकुम टीचर। Walaikum assalam. Beta, have you got page 83 of your worksheet? There lived a monkey in a forest. One day he was going about. आराम से, इतनी तेज मत पढ़ें, थोड़ा आहिस्ता. One day he was going about in a search of food as he was very hungry. At last he entered the house of a farmer. There was nobody in the house. The monkey found a hard vessel with a narrow opening. He put his hand into it. It had grains in it. He took a handful of these and tried to pull his hand out, but he could not do so with his closed fist. After some time, the owner of the house came up. His dog was also with him. The dog fell upon the monkey and tore him to pieces. Thus the monkey felt his fate due to his greed. Okay. जी बेटा, have you read the paragraph? Yes, miss, मैंने पढ़ लिया. जी, this is a quite a very easy paragraph. It's about a monkey. There lived a monkey in a forest. One day he was going about in search of food as he was hungry. A monkey, he was in search of food. Why was he in search of food? Because he was hungry. And in search of food, at last mean क्या होता है? आखिरकार, finally. He entered the house of a farmer. वो एक किसान के घर में गया. अब ओल्डन टाइम्स की बात है, उस वक्त इतने बड़े बड़े मतलब घर नहीं होते थे वेल बिल्ट के उनके इतने बड़े बड़े दरवाजे हों और लॉक करके जाए. खुले होते थे दरवाजे और लोग बस ऐसे ही बंद करके और चले जाते थे. इतना सिक्योरिटी वाइज उनको कोई इतने थ्रेट्स नहीं होते थे. There was nobody in the house. The monkey found a hard vessel. Vessel mean bartan, pot, with a narrow opening. A hard vessel with a narrow opening. जैसे आपने एक ऐसा बर्तन उसको मिला, एक ऐसा पॉट नजर आया जिसकी नैरो ओपनिंग थी, यानी उसकी ओपनिंग, उसका जो आउटलेट था, उसका मुंह तंग था, जिसे आप कह सकते हो सुराही नुमा. Have you ever seen? जी, सुराही क्या होती है? जैसे मटका होता है ना पानी का, और अगर उसकी ओपनिंग
टाइट कर ले, तंग कर ले, जैसे आपके घरों में कुछ वॉल्स भी होते हैं जिनके ऊपर का आउटलेट जिसमें हम फूल की फ्लावर स्टिक्स रखते हैं, वो स्टिक्स जहां जाती हैं वो थोड़ा नैरो होता है और उसके बाद नीचे से वो खुला होता है, उस टाइप का वो वेसल था। और उस वेसल में ही पुट हिज हैंड इनटू इट, उसने अपना हाथ, मंकी ने अपना हाथ उसमें डाला। इट हैड ग्रेन्स इन इट, और उसके हाथ में क्या आ गया? ग्रेन्स, दाने, अनाज के दाने उसे वहां उस वेसल में मिले। अब उसको क्या हुआ? वो तो खुश हो गया कि उसके हाथ में ग्रेन्स आ गए, उसे भूख लगी हुई थी, ही वॉज लुकिंग फॉर दैट, और अब उसे खाने के लिए कुछ मिल गया, कुछ फूड मिल गई, ग्रेन्स मिल गए। ही टुक अ हैंडफुल ऑफ दीज, अब उसने क्या किया? जब उसके हाथ में वो दाने आए, उसने टच से फील किया कि ग्रेन्स हैं अंदर और उसके हाथ में आ गए, तो ही टुक अ हैंडफुल ऑफ दीज, उसने उनकी मुट्ठी भर ली, यानी उसके हाथ में जितने आए वो उसने अपने हाथ में ऐसे भर लिए और बंद कर लिया अपना हाथ। एंड ट्राइड टू पुल हिज हैंड आउट, और उसने अपना हाथ बाहर खींचकर निकालने की कोशिश की। अब उस नैरो ओपनिंग से जब नीचे गया, वो बेस तक पहुंचा तो उसको दाने मिले और उसने दाने वहां से अपने हाथ में भरे, और वो हाथ में दाने भर के भरी हुई मुट्ठी के साथ वो उसने अपना हाथ खींचने की बाहर कोशिश की, लेकिन उसका हाथ बाहर नहीं निकल पाया। क्यों नहीं निकल पाया? He could not do so, लेकिन वो ऐसा ना कर सका with his closed fist. Closed fist का क्या मतलब है? बंद मुट्ठी। Closed fist, बंद मुट्ठी। बेटा मीनिंग लिख लिया करें अगर कोई न्यू वर्ड मिलता है। फिस्ट मीन मुट्ठी, क्लोज्ड फिस्ट बंद मुट्ठी। अब उसने हाथ में दाने लेके मुट्ठी बंद कर ली कि ये सारे दाने उसके हाथ के साथ ही आ जाएं, लेकिन ऐसे मुट्ठी की सूरत में उसका हाथ बाहर नहीं निकल रहा था। आफ्टर सम टाइम, अब वो इसी कोशिश में लगा रहा कि दानों समेत उसका हाथ उस बर्तन से बाहर निकल आए, लेकिन ऐसा ना हुआ, और इसी कोशिश में वो लगा रहा। एंड व्हाट हैपेंड? आफ्टर सम टाइम द ओनर ऑफ द हाउस केम अप, घर का मालिक आ गया। हिज डॉग वॉज ऑल्सो विद हिम, उसका डॉग भी उसके साथ था। अब डॉग ने जैसे ही देखा कि घर के अंदर एक मंकी दाखिल हुआ है और वो मंकी उनके वेसल से कुछ निकाल रहा है, तो आपको पता है डॉग तो बड़े फेथफुल होते हैं, दे आर फेथफुल टू देयर मास्टर्स। उसने देखा कि उस घर में कोई चोर आया हुआ है, कोई मंकी है और उनके वो ग्रेन्स निकाल रहा है, तो उसने उस पर फौरन अटैक कर दिया। द डॉग फेल अपॉन द मंकी, डॉग ने मंकी पे अटैक कर दिया। एंड टोर हिम टू पीसेस, और उसके टुकड़े कर दिए, यानी उस पे अटैक किया और उसकी चीर फाड़ कर दिया। दस द मंकी मेट हिज फेट, और इस तरह मंकी अपनी किस्मत से जा मिला। ड्यू टू हिज ग्रीड, अपने लालच की वजह से। ग्रीड मीन लालच, यानी अगर वो पहले से देख लेता, मतलब उसको फील हुआ कि कोई आया, तो फौरन वो वहां से अपना हाथ बाहर निकालता, दाने छोड़ देता, और खाली हाथ तो उसका जैसे गया था वैसे ही बाहर भी निकल आना था। लेकिन एंड तक वो उसी लालच में रहा कि दानों समेत बाहर निकाले, तो इस वजह से उसका हाथ वहीं पे फंसा रह गया और डॉग ने उस पर अटैक किया एंड टोर हिम टू पीसेस and he met his death due to his greed. Greed mean lalach. जी, the paragraph is clear to you all. Now come to its questions. जी बेटा, questions अब आपके answers अब आप लोग मुझे देंगे और ये आप लोगों ने खुद बताने। जी मिनहाल मेहदी बेटा, unmute yourself. Minhal Mehdi, unmute yourself and answer the question number 1. बेटा जल्दी कीजिए, ये अपनी हैबिट छोड़ दें। आप लोग से कुछ पूछा जाए तो आप लोग बोलते ही नहीं है, जल्दी से बताएं। मिनहाल अनम्यूट करें बेटा। एमन रफाकत। अस्सलाम वालेकुम टीचर। जी वालेकुम अस्सलाम। बेटा आंसर क्वेश्चन नंबर 1। Where did the monkey live? The monkey lived in a forest. The monkey lived in a forest. इसमें कोई मुश्किल नहीं थी मिनहाल बेटा, आप अच्छे भले पढ़ने वाले बच्चे हैं, बी सम कॉन्फिडेंट, आपको आंसर देना चाहिए था।
बेटा एमन नेक्स्ट क्वेश्चन का भी साथ ही आप आंसर दें. Why did he enter the house of a farmer? He entered the house of a farmer in search of food. Yes, he entered the house of a farmer in search of food. Beta, all of you note down these two answers. चलें बेटा, note down these two answers. जी, now come up to question number 3. What did he find there? अब वहां उसे क्या मिला? खदीजा एजाज, unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम टीचर. जी वालेकुम अस्सलाम. बेटा आंसर क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड वाला. The monkey found a hard vessel with a narrow opening. Yes, the monkey found there a hard vessel with a narrow opening. जी टीचर मैंने पूछना था कि आपने पहले पीरियड में क्या करवाया है? बेटा पहला पीरियड इंग्लिश बी का था, उस पे मैंने फ्यूचर परफेक्ट शुरू करवाया है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. टीचर उसकी स्क्रीन शेयर कर दें. बेटा वो कल करवाऊंगी. अब कल जब मैं उसका बाकी हिस्सा करवाऊंगी तो उस वक्त कर दूंगी. टीचर कल स्क्रीन शो कर दीजिएगा. और टीचर मैंने ये पूछना था कि स्कूल कब से खुल रहे हैं? बेटा अभी जो भी गवर्नमेंट का शेड्यूल आएगा आपको बता देंगे. ओके टीचर, थैंक यू. वो मैं आपको बता दूंगी. और टीचर कल शेयर कर दीजिएगा. हाँ जी चलें. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बेटा. ऑल ऑफ यू हैव नोटेड डाउन द आंसर. ये अब आपने साथ साथ इन पे करना है वर्कशीट्स पे. ये दोबारा मुझे करवाने का टाइम नहीं मिलेगा बेटा. जी ईमान आसिफ. अस्सलाम वालेकुम टीचर. जी वालेकुम अस्सलाम. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वाज इन द वेसल? What was in the vessel? There were grains in the vessel. जी there were grains in the vessel. लिखे बेटा, सब लोग साथ साथ नोट डाउन करें. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. What did the monkey do? He put his hand into the vessel, took a handful of grain and tried to pull out his hand. ज्यादा लंबा नहीं हो गया बेटा? What did the monkey do? monkey ने क्या किया? He जी बेटा क्या होगा, दोबारा बोले. He put his hand into the vessel. हाँ, he put his hand into the vessel. And took a handful of grains and Yes. tried to pull out his hand. Yes, he took a handful of grains. Note down beta, all of you must write. All of you must write. He put his hand into the vessel. He took a handful of grains and tried to pull his hand out. ठीक है, बस इतना लिखें इसका आंसर. बेटा आपको पहले बताया, कॉम्प्रिहेंशन में आपने कोशिश करनी है ट्राई टू बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, और सिर्फ उसी चीज का आंसर देना है जो आपसे पूछा गया है. ठीक है, ओके. अब नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर हुसैन, क्वेश्चन नंबर 6. Hello, Islam. जी वालेकुम अस्सलाम. Miss, रीड बेटा क्वेश्चन नंबर. he could not pull out his hand. Why could he not pull his hand out of the vessel? He could not pull out his hand out of the vessel because of his closed fist. बिकॉज ऑफ हिज क्लोज्ड फिस्ट. His fist. बेटा फर्स्ट नहीं, इसको फिस्ट बोलते हैं. और दूसरा आप ये जो कुड को में एल साइलेंट होता है. डू रिमेम्बर ऑल ऑफ यू, हमेशा क्लास में बताती हूँ, वुड और कुड में एल साइलेंट होता है, उसको नहीं बोलते. ठीक है. और ही कुड नॉट पुल हिज हैंड आउट ऑफ द वेसल with his closed fist because the opening was narrow. उसका वेसल से क्यों नहीं निकला हाथ बंद मुट्ठी के साथ? क्योंकि
उसकी ओपनिंग, उसका आउटलेट जो था वो नैरो था, बिकॉज द ओपनिंग वॉज नैरो, और बंद मुट्ठी के साथ वो ज्यादा बड़ा बन जाता. ओके, नोट डाउन यू जी ऑल. मिस. नोट डाउन इन योर बुक्स. जी ईमान काशिफ, अनम्यूट योर सेल्फ बेटा. टीचर अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम बेटा. आंसर क्वेश्चन नंबर 7 बेटा. Question number 7. How did the monkey meet his fate? The monkey met his fate due to his greed for the grains. यस. अब इसमें बेटा आपको पहले सबको ही पता है, अगर क्वेश्चन में डिड है तो आंसर में आपने सेकंड फॉर्म यूज करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में तो सेकंड फॉर्म इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि डिड है, और आंसर में डिड नहीं आता, आंसर में आपने सेकंड फॉर्म यूज करनी है. तो द मंकी मेट हिज फेट ड्यू टू हिज ग्रीड ऑफ ग्रेन्स. टीचर मैंने आपसे एक और चीज पूछनी थी. जी जल्दी पूछें. टीचर जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें जो आपने कहा है he could not pull his hand out of the vessel because of his closed fist, हो सकता है ये हो सकता है आंसर इसका. हाँ जी, बिकॉज ऑफ हिज क्लोज फिस्ट, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें साथ अगर आप मेंशन कर दें कि ओपनिंग नैरो थी, क्लोज फिस्ट के साथ वो निकालने की कोशिश कर रहा था, और ओपनिंग चूंकि नैरो थी, उसका मुंह तंग था, और उससे उसका मुट्ठी, उसकी क्लोज फिस्ट बाहर नहीं आ सकती थी. ठीक है टीचर. और जो क्वेश्चन नंबर 5 है टीचर उसमें आपने कहा है कि सिर्फ यही लिखना है he took a handful of grains and tried to pull his hand out. जी बिल्कुल इतना ही लिखना है जो पूछा है बेटा. बस इससे पहले मैंने ज्यादा लंबी, इतनी लंबी जो आप वो पूरी स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं होती. कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि आपने उस पैराग्राफ को पढ़ना है, समझना है, और जो आपको दिया हुआ है उसका टू द पॉइंट आंसर करें. मतलब बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है. जो सिर्फ पूछा गया है ना क्वेश्चन को, सिर्फ उसी का आंसर करें. ओके Is it टीचर. clear to all of you? Okay, now come to comprehension passage number 10. जी महरीन वकास, बेटा unmute yourself and read the. वालेकुम अस्सलाम बेटा, read the paragraph. Okay. A professional player is quite different from an amateur. His main aim is to make money. He plays the game to earn money or win a name. On the other hand, the amateur player has no such aim. He plays because he gets pleasure in playing. Games not only give him recreation but also physical exercise. He enjoys good health and a sound physique. He plays the game as he should. He observes all the rules and regulations of gentleman and a responsible citizen. He accepts defeat but does not resort to cheating or other unfair means to win. If he wins a game, he feels happy, but he is not sad at losing one. जी बेटा. ओके, थैंक यू बेटा. जी स्टूडेंट्स, टीचर मुझे क्वेश्चन पैसेज नंबर 9 के लास्ट आंसर क्या 7th. the monkey met his fate due to his greed of grains. Due to his greed. Due to his greed of grains, या खाली greed भी लिखते हैं तो काफी है. Okay. जी बेटा. Now comprehension paragraph number 10. बेटा listen to it attentively because again you have to find the answers yourself. Answer आप लोग खुद मुझे बताएंगे, ठीक है? So listen the paragraph carefully. A professional player is quite different from an amateur. प्रोफेशनल किसे कहते हैं? जो एज अ प्रोफेशन खेलते हैं, यानी जो अब आप देखें हमारी जो नेशनल क्रिकेट टीम्स में खेलते हैं वो लोग जो हैं वो प्लेयर्स हैं, वो दे आर प्रोफेशनल प्लेयर्स. जो इंटरनेशनल
टीम्स में खेलते हैं, कोई किसी भी गेम को खेलते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी, स्क्वैश, बैडमिंटन, whatever they are, if they are playing on professional lines, they are called professional player. A professional player is quite different from an amateur. Amateur किसे कहते हैं? Amateur जो शौकिया खेलते हैं, जो अपने पास टाइम में एज ए हॉबी खेलते हैं, मतलब उनको वो गेम को गेम के तौर पे खेलते हैं, वो उससे अर्निंग के लिए, पैसे कमाने के लिए, अर्निंग के लिए नहीं खेलते, बल्कि सिर्फ अपना पास टाइम के लिए, अपनी हॉबी के लिए खेलते हैं, ठीक है। अ प्रोफेशनल प्लेयर इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एन अमेच्योर, कि एक प्रोफेशनल प्लेयर एक शौकिया खेलने वाले से, एक हॉबी के तौर पे खेलने वाले से बहुत डिफरेंट होता है, दोनों के आउटलुक में फर्क होता है ना। His main aim is to make money. अब जो प्रोफेशनल प्लेयर है उसका क्या है मकसद? His main aim, उसका अहम मकसद, मेन एम, उसका अहम मकसद होता है to make money, पैसे कमाना। वो गेम खेलता है किस लिए? अर्निंग के लिए। He plays the game to earn money or win a name. अब प्रोफेशनल प्लेयर्स, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं हमारे, वो गेम्स खेलते हैं पैसे कमाने के लिए या विन अ नेम मीन नाम कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए, कि अगर वो अच्छा खेलेंगे, उनकी पॉपुलैरिटी होगी, दे विल विन फेम फॉर देमसेल्फ, फेमस हो जाएंगे, वो लोग उनसे फेमिलियर होंगे और उनको ज्यादा पैसे, मतलब ज्यादा प्राइजेस मिलेंगे, उनके गेम्स खेलने पे उनको ज्यादा पे किया जाएगा। On the other hand, दूसरी तरफ, the amateur players has no such aim. Amateur player का ऐसा कोई मकसद नहीं होता। अब आप जो खेल रहे हैं, लोग जो खेल रहे होते हैं, आप देखें संडे को, आप देखें ग्राउंड्स में लोग, इतने ज्यादा लोग खेल रहे होते हैं, स्ट्रीट्स में खेल रहे होते हैं, वो सब क्या है? वो सब दे ऑल आर एमेच्योर प्लेयर्स। एमेच्योर प्लेयर्स वो हैं जो शौकिया खेलते हैं, वो किसी मकसद के तहत नहीं खेलते, ना उनको कोई शोहरत चाहिए, ना उन्होंने पैसा कमाना है, बल्कि सिर्फ वो अपने शौक की खातिर खेलते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द एमेच्योर प्लेयर हैज नो सच एम, उसका कोई ऐसा मकसद नहीं होता। ही प्लेज बिकॉज ही गेट्स प्लेयर इन प्लेइंग, वो खेलता है क्योंकि उसे खेलने में खुशी मिलती है, खेलने से उसे खुशी मिलती है। गेम्स नॉट ओनली गिव हिम रिक्रिएशन, गेम्स खेलने से ना सिर्फ उसे तफरी मिलती है, रिक्रिएशन मीन तफरी, बट ऑल्सो फिजिकल एक्सरसाइज, बल्कि गेम्स उसे जिस्मानी वर्जिश, जिस्मानी एक्सरसाइज, वर्जिश भी मुहैया करती है, यानी उसकी एक्सरसाइज होती है और वो एंजॉय करता है। एमेच्योर प्लेयर गेम्स जब खेलते हैं, वो किस मकसद से खेलते हैं? कि उनको एंजॉयमेंट मिलती है। रिक्रिएशन मीन क्या होता है? तफरी, एंजॉयमेंट, और फिजिकल एक्सरसाइज। ही एंजॉयज गुड हेल्थ एंड अ साउंड फिजिक, उसे अच्छी सेहत और अच्छी फिजिक मिलती है। फिजिक मीन जिसामत, फिजिक जिसामत। ही प्लेज द गेम एज ही शुड, और वो गेम को ऐसे ही खेलता है जैसे कि खेलनी चाहिए। ही ऑब्जर्व्स ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गेम्स, ही ऑब्जर्व्स ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गेम्स, वो गेम के तमाम रूल्स रेगुलेशंस की पाबंदी करता है। ही ऑब्जर्व्स, वो पाबंदी करता है तमाम रूल्स और रेगुलेशंस की, यानी तमाम कवायद व ज़वाबित की उस गेम के। द अमेच्योर प्लेयर प्लेज ऑनेस्टली, और अमेच्योर प्लेयर ऑनेस्टली खेलता है, दयानतदारी से खेलता है, क्योंकि उसे कोई खौफ, कोई डर नहीं होता, ना उसे हार का डर होता है और ना कोई चीज खोने का, ना उसे ये होता है उसका नाम खराब होगा, वो हार जाएगा तो, ना उसकी कोई चीज उससे जा रही होती है, ना उसे ये होता है कि अगर वो उसके दो मैचेस में परफॉर्मेंस बुरी हो गई तो उसका वो बी कैटेगरी में आ जाएगा, उसका मुआवजा कम हो जाएगा, उसको कोई खौफ नहीं होता, इसलिए वो ऑनेस्टली खेलता है और सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए खेलता है। He becomes a disciplined gentleman and a responsible citizen,
और इसी वजह से एक अच्छा प्लेयर, एक अच्छा डिसिप्लिन्ड जेंटलमैन, मुल्क का एक डिसिप्लिन्ड शहरी भी बन जाता है और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल भी हो जाता है और डिसिप्लिन भी, यानी उसके अंदर नज्म ज़ब्त भी आ जाता है। डिसिप्लिन मीन नज्म ज़ब्त का पाबंद, मुनज़्ज़िम, शरीफ और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाता है। ही एक्सेप्ट्स डिफीट, ही एक्सेप्ट्स डिफीट, वो अपनी शिकस्त को कबूल कर लेता है। अगर वो गेम में हारता है तो वो उसको बड़े खुले दिल से अपनी शिकस्त को भी कबूल कर लेता है, बट डजंट रिसॉर्ट टू चीटिंग और अदर अनफेयर मीन्स टू विन। और अगर वो हार भी जाए तो वो अपनी शिकस्त को कबूल कर लेता है और चीटिंग या कोई और अनफेयर मीन्स इस्तेमाल नहीं करता जीत के लिए। इफ ही विंस अ गेम ही फील्स हैप्पी, अगर वो गेम जीत जाता है तो वो खुश होता है, बट ही इज नॉट सैड एट लूजिंग वन। लेकिन अगर वो हार भी जाए तो वो उदास नहीं होता, उस पर गमगीन नहीं होता, बिकॉज ही नोज इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम कि अगर जीत है या हार है, एक ने तो मतलब वन साइड हैज टू लूज, सब तो जीत नहीं सकते ना, कोई एक तो लूज करेगा ही, और वो अपनी शिकस्त को, अपनी गलती को तस्लीम कर लेता है। Okay, students, we will do its answers inshallah tomorrow because we are running short of time now.